नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्देशतारिणे গুরুদেবে বড় কৃপা করি গৌরবন মাঝে প্রথমে দিয়াছ স্থান। গুরুদেব বড় কৃপা করি গৌরবন মাঝে প্রথমে দিয়াছ স্থান। আজ্ঞা দিল মোরে এই ব্রজে বসি, আজ্ঞা দিল মোরে এই ব্রজে বসি, হরি নাম করো গান। আজ্ঞা দিল মোরে এই ব্রজে বসি, হরি নাম করো গান। গুরুদেব বড় কৃপা করি গৌরবন মাঝে গ্রধুমে দিয়াছ স্থান। কিন্তু কবে প্রভু যোগ্যতায় অর্পিবে, কিন্তু কবে প্রভু যোগ্যতায় অর্পিবে এ দাসের দয়া করি। কিন্তু কবে প্রভু যোগ্যতায় অর্পিবে এ দাসের দয়া করি। চিত্ত স্থিত হবে সকল সহিব একান্তে ভজিব হরি। গুরুদেব বড় কৃপা করি গৌরবন মাঝে গ্রধুমে দিয়াছ স্থান। আমার চিত্ত স্থিত হবে সকল সহিব একান্তে ভজিব হরি। গুরুদেব বড় কৃপা করি গৌরবন মাঝে গধুমে দিয়াছ স্থান। শৈশব যৌবনে জড় সুখ সঙ্গে, শৈশব যৌবনে জড় সুখ সঙ্গে অভ্যাস হইল মন্দ। শৈশব যৌবনে জড় সুখ সঙ্গে আমার অভ্যাস হইল মন্দ। নিজ কর্ম দোষে এ দেহ হইল ভজনের প্রতিবন্ধ। গুরুদেব বড় কৃপা করি গৌরবন মাঝে গধুমে দিয়াছ স্থান। বার্ধক্যে এখনো পঞ্চরোগে হত, বার্ধক্যে এখনো পঞ্চরোগে হত কেমনে ভজিব বল। কাঁদিয়া কাঁদিয়া তোমার চরণে, কাঁদিয়া কাঁদিয়া তোমার চরণে পড়িয়াছি সবিহল। গুরুদেব বড় কৃপা করি গৌরবন মাঝে গ্রধুমে দিয়াছ স্থান। আজ্ঞা দিল মোরে এই ব্রজে বসি, হরি নাম করো গান। গুরুদেব বড় কৃপা করি গৌরবন মাঝে গধুমে দিয়াছ স্থান। हे गुरुदेव, अत्यंत कृपा पूर्वक आपने मुझे गौर मंडल के वन में स्थित गधुम नामक स्थान में वास प्रदान किया। आपने मुझे आज्ञा दी इस स्थान पर वास करो जो कि ब्रज के समान ही है, तथा भगवान हरि के पवित्र नाम का जप कीर्तन करो। परंतु मेरे प्रिय स्वामी,
कब आप मुझे पवित्र नाम का जप कीर्तन करने की योग्यता प्रदान करेंगे? तब मेरा मन स्थिर हो जाएगा तथा मैं समस्त भौतिक विपदाओं को सहन करना सीख सकूंगा। इस प्रकार मैं भगवान हरि का एकांत भजन करने में सक्षम हो सकूंगा। बाल्यावस्था तथा युवावस्था में इंद्रिय तृप्ति में संलग्न होने के कारण मुझ में अनेक कुवृत्तियां उत्पन्न हुई है। मेरे कुकर्मों के कारण मेरा शरीर परम भगवान के भक्ति की राह में यह विघ्न बन गया है। अब वृद्धावस्था में मैं विभिन्न व्याधियों से ग्रस्त हूँ। इस अवस्था में मैं किस प्रकार भगवान का आराधना करने में सक्षम हो सकूंगा? मैं आपके चरण कमलों में गिरकर अतिशय निराशा पूर्वक रोदन करता हूँ। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। Hare Krishna, Dandavat. Thank you for the bhajan. So Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakya Chakshurunvaitam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamayam Dadati Swapadantikam. Vandayaham Shri Guruho Shri Yuta Padakamaram Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrijatam Sahagana Rakanatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Visakanvitamscha. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namustate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhani Sute Devi Pranamami Hari Priye Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya eva cha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prastaya Bhutale Srimati Bhaktivedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesa Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasari Gaura Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Good. Welcome everybody to today's class. आज की कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है। So last week where we stopped, we're ready to start on Sudolabha, Yes, the rareness of pure devotional service. we read it till we read for Sudurlabha, but we didn't. No, we read Subhadra. We didn't read Sudolabha. We read Subhadra, we read happiness and devotional service. We didn't read the rareness of pure devotional service. Yes, yes, Sukh Pradatva, yes, Krishna Bhavna. Page number 11. So we can read that section and then discuss it. Somebody can read. This Sukh Pradatva only? Yes, just read that one, and we've got about 3 slides explaining it, and that will just summarize it. तो अभी ये जो 11 नंबर पेज है चैप्टर नंबर 1 का सुख कृष्ण भावनामृत में सुख प्रदत्व, ये वाला टॉपिक हमने एक बार रीड किया था, अभी हम दोबारा रीड करेंगे और फिर इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो वॉलंटरीली भक्त रीडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि लंबा है तो काफी सारे भक्त रीडिंग कर सकते हैं। तो मेरे को रीना मेहता माता जी का हैंड रेज दिख रहा था। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। शील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावना अमृत में सुख शील रूप गोस्वामी के सुख के विभिन्न स्रोतों का विश्लेषण किया है। उन्होंने सुख की 3 श्रेणियां बताई हैं। एक, भौतिक भोग से प्राप्त होने वाला सुख वैश्विक। दूसरा, परब्रह्म से तदाकर होने का सुख ब्रह्म। तीसरा,
कृष्ण भावनामृत से प्राप्त होने वाला सुख ऐश्वर्य। तंत्र शास्त्र में भगवान शिव अपनी पत्नी सती से कहते हैं, हे प्रिय, जिस व्यक्ति ने गोविंद के चरणा बिंदों में शरण ले ली हो और इस तरह जिसने शुद्ध कृष्ण भावनामृत विकसित कर लिया, उसे निर्विशेषवादियों द्वारा आकांक्षित सारी सिद्धियां बहुत आसानी से प्रदान की जा सकती हैं। इसके अलावा वह शुद्ध भक्तों द्वारा प्राप्त होने वाला सुख भोग सकता है। शुद्ध भक्ति Hey, से प्राप्त excuse me, just a minute. We're supposed to be reading realness of devotional service, not happiness in devotional service. In English, it starts the preliminary phase of spiritual life. But Mataji, we have not discussed this. So Yeah, we don't need to am read I it. audible, Mataji? No, we just read it. We didn't discuss it because there Yes, was actually no slides there to discuss. Okay. Okay. So we don't have to read it again then. No, we don't have to read it again. We should be reading page 25. 15. Shuddha Bhakti Durlabh Hai. Page number 15. Sudurlabha. Oh, 15. Okay, sorry. My Hindi numbers are not so good. I also made a guess. I could just recognize one. Okay. हाँ ठीक है माता जी, शुद्ध भक्ति यही पढ़ना था, शुद्ध भक्ति दुर्लभ। हाँ, ठीक। यहीं से पढ़ो। हाँ, हाँ। सुदुर्लभा से, हाँ। ठीक ठीक। शिल प्रभुपाद की जय। शुद्ध भक्ति दुर्लभ है, सुदुर्लभा। आत्म साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए आध्यात्मिक जीवन की प्रारंभिक अवस्था में विभिन्न प्रकार की तपस्याएं तथा इसी तरह की अन्य विधियां हैं, किंतु इन विधियों को संपन्न करने वाला यदि किसी भौतिक इच्छा से रहित भी है तो भी वह भक्ति को प्राप्त नहीं कर सकता। अपनी शक्ति मात्र से भक्ति की कामना करना भी अधिक आशाप्रद नहीं है, क्योंकि कृष्ण हर किसी को भक्ति प्रदान करने के लिए तैयार नहीं होते। वह किसी व्यक्ति को भौतिक सुख या मुक्ति को प्रदान कर सकते हैं, किंतु वह किसी व्यक्ति को अपनी भक्ति में लगाने के लिए जल्दी तैयार नहीं होते। भक्ति तो वास्तव में शुद्ध भक्तों की कृपा से ही प्राप्त की जा सकती है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19.251 में कहा गया है, शुद्ध भक्त रूप गुरु की कृपा से तथा कृष्ण की कृपा से ही भक्ति का पद प्राप्त होता है, इसके सिवाय कोई अन्य उपाय नहीं है। कंटिन्यू करूं माता जी? हरे कृष्णा। Yes, you read this whole section down to the next heading. कोई और भक्त भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकते हैं, मतलब हमें ये पूरा पढ़ना है एक ही बार। मानसी, Yeah, halfway down the following page is where you'll stop. पढ़ो माता जी। ये वहाँ मानसी गंगा माता जी पढ़ लो, आप एक पैराग्राफ पढ़ के रुक जाओ। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तंत्र शास्त्र में भी भक्ति की सुदुर्लभता की पुष्टि हुई है। भगवान शिव सती से कहते हैं, हे सती, यदि कोई श्रेष्ठ दार्शनिक है और यह ज्ञान की विविधों का विश्लेषण करता है तो वह भौतिक बंधन से मोक्ष प्राप्त कर सकता है। वेद वर्णित कर्मकांडों के कारण से मनुष्य पवित्र कर्मों के पद तक उठ सकता है और उसमें जीवन की भौतिक सुविधाओं का पूर्ण रूपेण भोग कर सकता है। हजारों जन्मों तक इन विधियों से प्रयत्न करने पर भी उसे भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं हो सकती। श्रीमद् भागवतम में भी प्रहलाद महाराज द्वारा यह पुष्टि की गई है कि केवल निजी प्रशंसों से या उच्च अधिकारी के उपदेशों से ही भक्ति अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती। उस शुद्ध भक्त के चरण कमलों की धूलि का आशीर्वाद प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि भक्त भौतिक इच्छाओं के कलमश से पूरी तरह मुक्त होता है। श्रीमद् भागवत में नारद भी युधिष्ठिर से कहते हैं, हे राजन, मुकुंद नाम से विख्यात भगवान कृष्ण ही पांडवों तथा यादवों के नित्य रक्षक है। वे सभी तरह से आपके गुरु तथा उपदेशक भी है। केवल वे ही आपके पूज्य ईश्वर है। वे अत्यंत स्नेहिल और आपके व्यक्तिगत तथा पारिवारिक समस्त कार्यों के निर्देशक है। इससे भी बड़ी बात यह है कि कभी कभी वे आपके आदेशों का पालन करते हैं, मानो वे आपके संदेह वाहक हो।
हे राजन, आप कितने भाग्यवान हैं, क्योंकि भगवान ने आप पर जितने अनुग्रह किए हैं उनकी कोई सपने में भी कल्पना नहीं कर सकता। इस श्लोक का तात्पर्य यही है कि भगवान मुक्ति तो सरलता से प्रदान करते हैं, किंतु वे बिरले ही किसी जीव को भक्ति प्रदान करने के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि भक्ति के द्वारा भगवान भक्त के कृतदास बन जाते हैं। हरे कृष्ण। Thank you, Hare Krishna. Okay, so this is summarized in just a few slides. So Rupa Goswami gives two main reasons why bhakti is very difficult to obtain. तो अभी रूप गोस्वामी ने हमें दो ऐसे कारण बताए हैं जिस कारण से भक्ति सुदुर्लभ है। The first one, we cannot obtain it by our own efforts. It only comes by Krishna's mercy. तो पहला कारण ये है कि हम इसको अपने प्रयास के द्वारा प्राप्त नहीं कर सकते, ये सिर्फ कृष्ण की कृपा से ही आती है। And the second one is Krishna is not easily granting devotional service. और दूसरा कारण ये है कि जो कृष्ण है वो बहुत आसानी से भक्ति नहीं प्रदान करते। So the question may be raised, why should we try to endeavor in Krishna consciousness if we can't achieve it by our own efforts? तो अब सवाल ये आता है कि हमें फिर कृष्ण भावनामृत में आने के बाद कोई भी प्रयास करने की आवश्यकता ही क्या है जब वो हमारे प्रयासों से मिलती ही नहीं है। So the answer is that our own efforts cannot cause bhakti, but they can do two things. They can attract Krishna's mercy by showing that we're sincere. तो इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि जो हमारे प्रयास हैं वो भक्ति तो नहीं दे सकते, लेकिन वो दो महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। पहला कार्य ये है कि कृष्ण की कृपा को आकर्षित कर सकते हैं अपनी रुचि दिखाकर। And the second reason is that our endeavors in Krishna consciousness will purify our heart and make it capable to hold Krishna's mercy. और फिर उसके बाद क्या होगा कि अगर हम अपने प्रयास करते हैं तो हमारे प्रयास करने से जो हमारा हृदय है वो शुद्ध हो जाएगा और फिर हमारा हृदय इस काबिल हो जाएगा कि हम कृष्ण की कृपा के पात्र बन सके। And why Krishna does not give it easily is because it has the power to control him. और कृष्ण क्यों नहीं देते हैं भक्ति आसानी से? क्योंकि भक्ति में कृष्ण को भी अपने वश में करने की शक्ति होती है। Okay, that's it for that one. Now we have the happiness of becoming one with the Supreme, which is called, it's just two short paragraphs. Yes. Brahma se ekakar hone ke sukh. तो ये इतना ही था। अब इसके बाद जो दूसरा है, ब्रह्म से एकाकार होने का सुख, सांद्रांत विशेषात्मा, इसको प्लीज कोई भक्त रीड कर सकते हैं? अंशु माता जी, मैं पढ़ूं? माता जी से करवा दीजिए प्लीज। किससे? शीतल माता जी से, उनके पास सिस्टम पिक भेजी है मैंने। अब अभी पद्मजा माता जी ने हैंड रेस किया, उन्होंने बोला कि वो अभी फिर बार बार पिक भेजनी पड़ेगी, नेक्स्ट करवा लेना, उनके पास बुक है ना। कोई नहीं माता जी, करा लीजिए, मैं फिर कर लूंगी। करिए, फिर रीड करिए। शीतल माता जी। हरे कृष्ण माता जी, दंड प्रणाम। पढ़ो माता जी। हाँ जी। माता जी कहाँ से पढ़ना है? Page 16. भ्रम से एकाकर होने का सुख, सांद्रान विशेषात्मा। हाँ जी। श्रील रूप गोस्वामी कहते हैं कि यदि ब्रह्मा आनंद अर्थात ब्रह्मा से एकाकार होने के सुख को करोड़ों गुना किया जाए तब भी वह भक्ति सागर से प्राप्त होने वाले सुख के अनुमात्र हैं, अनुमात्र अंश के तुल्य नहीं हो सकता। हरि भक्ति अध्याय में प्रहलाद महाराज अपनी प्रार्थनाओं से भगवान नरसिंह देव को तुष्ट करते हुए कहते हैं, हे ब्राह्मण, हे प्रभु, मुझे आपके समक्ष दिव्य आनंद का अनुभव हो रहा है और मैं सुख के सागर में मगन हो चुका हूँ।
अब मैं इस सुख सागर की तुलना में ब्रह्मा आनंद के सुख को गोखुर के जल के समान तुच्छ मानता हूँ। इसी प्रकार श्रीमद् भगवत पर श्रीधर स्वामी के भाष्य भावार्थ दीपिका में पुष्टि की गई है। हे प्रभु, कुछ भाग्यशाली लोग जो आपकी भक्ति के अमृत सागर में तैर रहे हैं और आपकी लीलाओं के वर्णन के अमृत के स्वाद ले रहे हैं, निश्चित रूप से उन आहत भावों को जानते हैं जो धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष से प्राप्त होने वाले सुख को तुच्छ बना देते हैं। ऐसे दिव्य भक्त भक्ति के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के सुख को सड़क पर पड़े तृण की तरह तुच्छ मानते हैं। हरे कृष्ण। Hare Krishna, thank you. Okay, so this one actually combines two qualities. It combines Moksha Lagatu Krit and Sandrananda Visheshatma, two types of happiness. And how bhakti is trillion times greater than the happiness of Brahmananda, and how it's very special. तो इसके अंदर दो प्रकार की चीजों की बात हो रही है, एक मोक्ष प्राप्ति की और दूसरी सांद्र आनंद की। तो ये बताई जा रही है कि किस प्रकार से ये ब्रह्म आनंद से उच्च है भक्ति। तो इसके बारे में यहाँ पे चर्चा हो रही है। So, and now in our slides, we're going to summarize these three types of happiness. So in the first one, in Subhada, we had a happiness that we achieve at the platform of Nishta. The second type of happiness is achieved at the stage of Bhav, and the Sandrananda Visheshatma is achieved at the stage of Prem. So this Moksha Lagatu Krit, happiness of pure devotional service is so great that it makes inestimable, it's not even a good word, inestimable happiness of liberation appear trivial. तो बताया जा रहा है कि जो मुक्ति से प्रसन्नता मिलती है और जो भक्ति से प्रसन्नता मिलती है, तो अब हम यहाँ पे भक्ति की प्रसन्नता की बात कर रहे हैं कि जो भक्ति से प्रसन्नता मिलती है वो इतनी महान है कि जो भी मुक्ति से मिलने वाली चीजें हैं जिसको हम गिन भी नहीं सकते हैं, अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं, उससे भी उच्च जो प्रसन्नता मिलती है वो शुद्ध भक्ति करने से मिलती है। And Sandrananda Visheshatma, the happiness of pure devotional service can become so intense that it is incalculably condensed and fills the entire consciousness of the devotee. तो इसके अंदर बता रहे हैं कि सांद्र आनंद में क्या है कि जो शुद्ध भक्ति से जो खुशी मिलती है ये इतनी ज्यादा प्रगाढ़ होती है कि ये जो भक्त की पूरी चेतना है उसको प्रसन्नता से भर देती है। So when I did my Bhakti Shastri, I was doing nectar devotion with Kadambakanan Swami, and he was explaining like this, that the pleasure of devotional service is so great that it fills our consciousness. But as we advance in devotional service, in Prema Bhakti, it becomes more and more condensed, more and more dense. So it's still filling our consciousness, but it's more, and it says incalculably filling our consciousness. It becomes more and more condensed. तो इसके अंदर माता जी बता रहे हैं कि जब वो भक्ति शास्त्री कर रहे थे तो परम पूज्य कदम कानन महाराज जी से भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ते थे और उसके अंदर महाराज जी इस बात के लिए बता रहे थे कि ये जो है जब हम भक्ति में आते हैं और भक्ति करते हैं तो उससे जो प्रसन्नता मिलती है वो हमारी चेतना को पूर्ण रूप से भर देती है प्रसन्नता से। लेकिन वो ये भी बता रहे थे कि जब हमें भक्ति करते करते साल हो जाते हैं तब भी वो प्रसन्नता बढ़ती रहती है, हमारी चेतना को भर भी रही है और पर वो जो खुशी है, जो प्रसन्नता है वो और प्रगाढ़ होती जाती है धीरे धीरे। Okay, so here is a summary of three types of happiness that was covered. Subhada had three qualities. One was that it was
gives happiness. One that was it gives good qualities, and I forget what the third one was. So that happiness is happiness of sadhana bhakti, which is superior to all others. तो शुभधाम की जब हमने चर्चा करी थी तो उसमें एक प्रसन्नता की भी बात हो रही थी, और वो प्रसन्नता की बात हो रही थी कि साधना भक्ति से वो प्रसन्नता आती है और वो बाकी अन्य प्रसन्नताओं से उच्च होती है. And then at the stage of bhava bhakti, the happiness is so wondrous that it derides even liberation. That was moksha lagatu katakrit. तो इसके अंदर बताया जा रहा है कि और जो भाव भक्ति से प्रसन्नता मिलती है वो इतनी अच्छी है कि वो एकदम से मुक्ति तक पहुंचा देती है खुद ब खुद ही. And at prema bhakti, it's sandrananda visheshatma, it's simply incalculable. तो जैसे कि अब हम बात करते हैं प्रेम भक्ति यानी कि सांद्र आनंद विशेष आत्मा, मतलब तो जो प्रेम भक्ति से प्रसन्नता मिलती है उसका तो किसी भी प्रकार से कोई अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता. Okay. So now we can read the last section called Attracting Krishna. Krishna ko akarshit karna. Shri Krishna karshani. तो अब हमें लास्ट वाला सेक्शन पढ़ना है इसका, कृष्ण को आकर्षित करना. तो अभी एक, क्योंकि काफी ये थोड़ा बड़ा है, ऑलमोस्ट 8 पेज है, तो एक एक पैराग्राफ करके प्लीज सारे भक्त वॉलंटियर करके रीड कर ले ताकि सबको चांस भी मिल जाए. और हैंड रेस कर ले एक बार अपना, कौन इंटरेस्टेड है पढ़ने में. पहले Anshu has raised her hand. अंशु माता जी आप पढ़ोगे पहला पैराग्राफ. हरे कृष्णा माता जी. Hare Krishna. कृष्ण को आकर्षित करना श्री कृष्ण कर्षिणा. श्रील रूप स्वामी ने की भक्ति कृष्ण को भी आकृष्ट करने वाली है. कृष्ण सबों को आकृष्ट करने वाले हैं, किंतु भक्ति कृष्ण को आकृष्ट करती है. सर्वोच्च भक्ति की प्रतीक राधा रानी है. कृष्ण मदन मोहन कहलाते हैं, जिसका अर्थ है कि वह हजारों कामदेवों के आकर्षण को भी पराजित करने वाले हैं. किंतु राधा रानी इससे भी अधिक आकर्षक है, क्योंकि वह कृष्ण को भी आकृष्ट करने वाली है. इसलिए भक्तगण उन्हें मदन मोहन मोहिनी कहते हैं. भक्ति करने का अर्थ है राधा रानी के पद चिन्हों का अनुसरण करना, और वृंदावन में भक्तगण अपनी भक्ति से सिद्धि पाने के लिए अपने आप को राधा रानी के संरक्षण में रखते हैं. दूसरे शब्दों में भक्ति भौतिक जगत का कृत्य नहीं है, यह तो सीधे राधा रानी के नियंत्रण में रहती है. भगवत गीता में इसकी पुष्टि हुई है कि महात्मा लोग देवी प्रकृति अर्थात अंतरंगा शक्ति यानी राधा रानी के संरक्षण में रहते हैं. अतएव कृष्ण की अंतरंगा शक्ति के सीधे नियंत्रण में रहने के कारण भक्ति स्वयं कृष्ण को भी आकृष्ट करती है. इस तथ्य की संपुष्टि कृष्ण ने श्रीमद् भागवत में यह कहकर की है, हे उद्धव, तुम मुझसे जान लो कि अपने भक्तों द्वारा की गई भक्ति के लिए मैं जो आकर्षण अनुभव करता हूँ वह कठिन तपस्या या दान में सर्व लुटाने पर भी प्राप्त नहीं हो सकता. हाँ, ये कार्य उत्तमोत्तम कार्य तो है ही, किंतु वे मेरे भक्तों द्वारा की गई दिव्य प्रेमा भक्ति के समान मुझे आकर्षक नहीं लगते. कृष्ण अपने भक्तों की भक्ति से जिस प्रकार आकृष्ट होते हैं उसका वर्णन नारद ने श्रीमद् भागवतम में किया है. जब राजा युधिष्ठिर प्रहलाद महाराज के चरित्र की महिमा प्रशंसा करते हैं, नारद करते हैं, दूसरे की प्रशंसा करता है. युधिष्ठिर प्रशंसा कर रहे थे जो कि शुद्ध समझता, वह सदा यही सोचता है कि अन्य भक्त. युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे प्रहलाद महाराज सचमुच माता जी पहला पैराग्राफ हुआ नहीं. No, I think, are you hearing this clearly or is it my internet that's cutting in and out? Her voice is also taken. And I think she has read more than one paragraph. Yeah, she's read the 3 small I'm on paragraphs. 5th paragraph. Yeah. You had to read only one paragraph. That's all right. So she's read
these 3 paragraphs. So Krishna apne bhakton ki bhakti se jis prakar. We could start that paragraph again with somebody else reading. कौन भक्त पढ़ेंगे अब? हरे कृष्णा माता जी। हरे Hare Krishna Prabhu. Carry on. मैं बारिश में फंस गया था, थोड़ा लेट पहुंचा हूं, मुझे पेज बता दो कौन सा है। Page 17. 17. 17. 17। Yeah, coming down 1/3 of the page. Krishna apne bhakton ki bhakti se jis prakar आकृष्ट होते हैं। प्रभु जी मिल गया? कृष्ण आकर्षणी में 3rd पैराग्राफ। इस तथ्य की संपुष्टि कृष्ण, ये यहाँ से। No, next paragraph, 4th paragraph, प्रभु जी। इस तथ्य की संपुष्टि कृष्ण ने। Now Krishna अपने भक्तों की भक्ति से जिस प्रकार आकृष्ट इससे होते नेक्स्ट हैं। प्रभु जी, इससे नेक्स्ट जो आप बोल रहे Next paragraph। ठीक है जी, ठीक है जी। Carry on, प्रभु जी। प्रभु जी रीड करो। मैं करता हूँ। हरे कृष्णा प्रभुपाद जी की जय। कृष्ण अपने भक्तों की भक्ति से जिस प्रकार आकृष्ट होते हैं उसका वर्णन नारद ने श्रीमद् भागवतम में 7.10.48-49 किया है। जब राजा युधिष्ठिर प्रहलाद महाराज के चरित्र की महिमा की प्रशंसा करते हैं तभी नारद राजा को संबोधित करते हैं। भक्त दूसरे भक्तों की सदैव प्रशंसा करते हैं। युधिष्ठिर महाराज प्रहलाद के गुणों की प्रशंसा कर रहे थे, जो कि शुद्ध भक्त का एक लक्षण है। शुद्ध भक्त कभी भी अपने को महान नहीं समझता, वह सदा यही सोचता है कि अन्य भक्त उससे बढ़कर हैं। युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे प्रहलाद महाराज सचमुच ही भगवत भक्त हैं, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। जब वे ऐसा सोच रहे थे तभी नारद ने उन्हें इस प्रकार संबोधित किया। मेरे प्रिय राजा युधिष्ठिर, इस जगत में एकमात्र आप लोग पांचों पांडव ही इतने भाग्यवान हैं। भगवान इस लोक में अवतरित हो चुके हैं और वह आपके समक्ष सामान्य मनुष्य के रूप में उपस्थित हैं। वह सभी परिस्थितियों में आपके साथ हैं, वह आपके साथ रह रहे हैं और अपने को अन्यों की दृष्टि से छुपाए हुए हैं। अन्य लोग ये नहीं समझ सकते कि वे परमेश्वर हैं, किंतु तो भी वह आपके साथ, आपके मेरे भाई, आपके मित्र, यहाँ तक कि आपके संदेशवाहक के रूप में रह रहे हैं। अतएव इनका जान लीजिए कि आपने समान इस जगत में कोई दूसरा भाग्यशाली नहीं है। You can read the next paragraph and finish that section. Yeah? Next paragraph also, Mataji. Should I read next? That's okay with me. Read that next paragraph and complete. Sorry, Mataji. Should I read next पढ़ो paragraph? प्रभु जी नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ो। भगवत गीता में जब कृष्ण अपने विराट रूप में प्रकट हुए तो अर्जुन ने प्रार्थना की, हे कृष्ण, मैंने तो आपको अपना मेरा भाई सोच रखा था और इसलिए मैंने आपको कृष्ण या सखा कहकर कई प्रकार से आपके प्रति अनादर जताया है, लेकिन आप इतने महान हैं ये मैं समझ नहीं सका। ऐसी स्थिति थी पांडवों की। यद्यपि कृष्ण भगवान हैं और महापुरुषों में महानतम हैं, किंतु वह पांचों राजवंशी भाइयों की निष्ठा, मैत्री तथा प्रेम से आकृष्ट होने के कारण उनके साथ रहे। ये इसका प्रमाण है कि ये भक्ति विधि इतनी महान है, ये भगवान तक को आकृष्ट कर सकती है। ईश्वर महान है, किंतु भक्ति ईश्वर से भी महान है, क्योंकि ये उन्हें आकृष्ट करती है। जो लोग भक्ति नहीं करते वह ये कभी नहीं समझ सकते कि ईश्वर की सेवा करने का कितना महत्व है। हरे कृष्णा प्रभुपाद जी की जय। Thank you, Prabhuji.
So this section is about how devotional service attracts Krishna. And of course, it's also telling us about the qualities of the pure devotee. तो अभी ये जो हमने चर्चा करी ये हमें बताती है कि कृष्ण भावनामृत किस प्रकार से भक्ति जो है वो कृष्ण को भी आकर्षित करती है, और दूसरा ये एक शुद्ध भक्त में क्या गुण होते हैं। चोपड़ा जी आप ना म्यूट कर लो, आपका माइक ऑन है, डिस्टर्बेंस कर रही है। So these qualities are what attracts Krishna. A pure devotee never thinks himself great. He always thinks that other devotees are greater than himself. तो एक जो शुद्ध भक्त होते हैं वो कभी ये नहीं सोचते कि मैं महान हूँ, वे सोचते हैं कि जो दूसरे हैं वो मुझसे ज्यादा महान है। Okay, now a summary here. Being the Supreme Lord, Krishna is not in need of anything, but he is attracted to the pleasure of his own internal potency, expressed through the loving affection of his parts and parcels, means his devotees. तो इसके अंदर बता रहे क्योंकि कृष्ण परम भगवान है तो उन्हें किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो फिर भी अपनी अंतरंग शक्ति से आकर्षित रहते हैं, जो कि एक प्रेम में सेवा के द्वारा उनके जो अंश है उनके द्वारा प्रकट करी जाती है। And of course, Srimati Radharani is the greatest attractor of Krishna, which is why Prabhupada mentioned Madan Mohan Mohini. तो और इसके अंदर ये भी देखा जाता है कि जो राधा रानी है वही कृष्ण को सबसे ज्यादा आकर्षित करती है, और इसलिए श्रीला प्रभुपाद ने यहाँ पे इस चीज का भी वर्णन किया है, मदन मोहन मोहिनी। This is because pure devotional service. माता जी म्यूट कर लो, सरिता माता जी म्यूट कर लो। You can't see from here. Oh, okay, सरिता माता जी Sarita. म्यूट कर लो। Yeah, now she's muted. Okay, so this is because pure devotional service and as a manifestation of the internal potency expands from Srimati Radharani. तो इसके अंदर बताया जा रहा है क्योंकि जो शुद्ध भक्ति है वो भगवान की अंतरंग शक्ति की ही विस्तार है, और ये श्रीमती राधा रानी से ही आती है इस कारण से। Since she is the most attractive to Krishna, her potency, pure devotional service, also has the potency to attract Krishna. तो इसके अंदर बताया जा रहा है क्योंकि वो कृष्ण को सबसे ज्यादा आकर्षित करती हैं, तो जो उनकी भक्ति है और जो उनके अंदर शक्ति है, और तो उसके अंदर भी कृष्ण को आकर्षित करने की क्षमता है। So Prabhupada says in one lecture on nectar devotion, pure devotional service is the only means to attract Krishna. तो प्रभुपाद एक जगह पे ये बताते हैं कि शुद्ध भक्ति जो है वही सिर्फ एकमात्र साधन है कृष्ण को आकर्षित करने का। You cannot attract Krishna. तो हम जो है वो कृष्ण को आकर्षित नहीं कर सकते हैं। You cannot attract Krishna by your wealth, और आप कृष्ण को अपने धन से भी आकर्षित नहीं कर सकते, by your reputation, और अपनी जो आपकी जितने भी आप प्रसिद्ध हो विश्व में, लेकिन वो चीज भी कृष्ण को आकर्षित नहीं करती, or by your education, or by your beauty. और ना ही आपकी सुंदरता और ना ही आपकी जो पढ़ाई है विद्या है वो कृष्ण को आकर्षित कर सकती है। Because Krishna is already full in these opulences. क्योंकि कृष्ण तो इन सारे गुणों की खान है। So no opulence can attract Krishna because he's Atmaram. और हमारा कोई भी जो भी संसार की जो भी चीजें हैं हमारे पास वो कृष्ण को आकर्षित नहीं कर सकती क्योंकि कृष्ण आत्मराम है। But if you offer something to Krishna, it is for your own benefit. पर लेकिन फिर भी आप कृष्ण को कुछ देते हैं, कुछ अर्पण करते हैं, तो ये आप हमारे ही फायदे के लिए है। Prabhupada gives you an example. Just like if you decorate a person, then the reflection in the mirror is also decorated. तो इसके अंदर ये बताया जाता है इस प्रकार से अगर आप किसी व्यक्ति को सजाते हैं तो उसकी जो शीशे में छवि दिखाई देती है वो भी सुंदर ही आती है। So similarly, if you decorate the deity gorgeously, you will also feel happy. तो इसी प्रकार से जब आप विग्रह को बहुत अच्छे से सजाएंगे तो आप भी सुंदर दिखेंगे।
Krishna has many devotees and many things for being decorated with. तो कृष्ण के पास बहुत सारी चीजें हैं जो सजाने के लिए काम आ सकती हैं। But if in the temple you offer Krishna all nice things, nice flowers, dress, food, everything nice, then you will feel happy. तो इसके अंदर बताया जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर आप मंदिर में कृष्ण के विग्रह को सुंदर सुंदर वस्त्र और फूल अर्पण करते हैं और सब कुछ सुंदर सुंदर अर्पण करते हैं तो आप भी प्रसन्न रहेंगे। So that is in your interest. But what will make Krishna happy is that you are trying to do things for him. Your devotional service, the sincerity will attract him. तो ये चीज जो है ये हमारे फायदे के लिए ही है, और अगर आप ये सब करोगे तो ये कृष्ण को आकर्षित कर सकती हैं ये सारी चीजें कि किस प्रकार से आप प्रयास कर रहे हैं और कितनी आपके अंदर इच्छा है, रुचि है इस चीज को करने। Prabhupada says, my Guru Maharaj used to say, do not try and see Krishna. Render your service in such a nice way that Krishna will want to see you. तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि मेरे गुरु महाराज कहते थे कि आप कृष्ण को देखने का प्रयास मत करो, पर इस प्रकार से सेवा करो कि कृष्ण आपको देखने का प्रयास करे। And when Krishna sees us, our mission is perfect. और फिर जब कृष्ण हमारी तरफ देख ले तो हमारा जो कार्य है वो सफल हो जाता है। If you want to attract Krishna, then be engaged in pure devotional service. और अगर आप कृष्ण को आकर्षित करना चाहते हैं तो आप शुद्ध भक्ति में लगिए। Okay, that's the end of chapter 1. तो इसके साथ जो पहला अध्याय है वो पूर्ण हुआ। We can carry on and go on to chapter 2. तो अब हम अध्याय 2 प्रारंभ करेंगे। So chapter 2 is not in sections like that. Let me just pick up this slideshow. So, 2. Okay, so let's read the first paragraph and then I'll read the summary part of this slideshow. तो पहला पैराग्राफ पढ़ना है अध्याय नंबर 2 का। कौन भक्त पढ़ना चाहेंगे? रीना महतो। हरे कृष्ण माता जी, मैं पढ़ कौन? पद्मजा माता जी। हाँ जी माता जी, आपने एक बार हाँ जी। हरे कृष्ण, प्रणाम माता जी। हाँ। भक्ति की प्राथमिक अवस्थाएं। श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति की 3 कोटियां बतलाई हैं: साधन भक्ति, भाव भक्ति तथा प्रेमा भक्ति। इन 2 कोटियों के अनेक उपशीर्षक हैं। सामान्यतः यह समझा जाता है कि साधन भक्ति में 2 भिन्न भिन्न गुण होते हैं, भाव भक्ति में 4 और प्रेमा भक्ति में 6। इन गुणों की विवेचना श्रील रूप गोस्वामी द्वारा बाद में की जाएगी। आगे पढ़ूं माता जी? Yeah, one more paragraph, otherwise we haven't got anything much to discuss. ओके मैम। इस प्रसंग में श्रील रूप गोस्वामी का सुझाव है कि भक्ति या कृष्ण भावनामृत के पात्र को उसकी विशेष रुचि के अनुसार वर्गीकृत किया जा सकता है। वे कहते हैं कि भक्ति मनुष्य के पूर्व जन्मों से चली आ रही सतत प्रक्रिया है। जब तक भक्ति से मनुष्य का कोई विगत संबंध नहीं होता तब तक वह भक्ति ग्रहण नहीं कर सकता। उदाहरणार्थ मान लीजिए कि मैं इस जन्म में कुछ हद तक भक्ति करता हूँ, यद्यपि यह 100% पूर्णतया नहीं की जा रही हो, किंतु जितनी भी भक्ति मैं करूंगा वह नष्ट नहीं होगी। अगले जीवन में मैं पुनः वहीं से भक्ति प्रारंभ करूंगा जिस बिंदु पर इस जीवन में मैंने बंद की हो। इस तरह सातत्य सदा बना रहता है। यद्यपि सातत्य ना भी रहे और यदि कोई व्यक्ति संयोग शुद्ध भक्त के उपदेश पर रुचि दिखाता हो तो उसे स्वीकार किया जा सकता है और वह भक्ति में आगे बढ़ सकता है। जो भी हो, ऐसे व्यक्ति जिन्हें भगवत गीता या श्रीमद् भागवतम जैसे ग्रंथों के समझने में सहज रुचि है, उनके लिए भक्ति उन लोगों की अपेक्षा अधिक सरल है जो केवल मानसिक चिंतन, ज्ञान एवं तर्क प्रक्रियाओं के आदि हैं। हरे कृष्ण माता जी, प्रणाम। Thank you very much. Hare Krishna.
So let's make this better. Yeah. Okay, should be better. So the first paragraph discussed how these 6 qualities were divided up, 2 qualities in sadhana bhakti, 2 in bhava bhakti, and 2 in prema bhakti. इसके अंदर बताया जा रहा है कि जो 6 गुणों की चर्चा हुई है वो किस प्रकार से 3 स्तरों में बांटी गई है, 2 साधना भक्ति, 2 प्रेम भक्ति, 2 भाव भक्ति। So now from this chapter 2 on until about chapter 16, I think, we're going to discuss sadhana bhakti. तो अध्याय नंबर 2 से लेके 16वें अध्याय तक अब हम साधना भक्ति पर चर्चा करेंगे। So we're going to also discuss one's eligibility for practicing sadhana bhakti, which is attraction to pleasing Krishna. तो हम चर्चा करेंगे कि क्या योग्यता होती है साधना भक्ति करने की जो महत्वपूर्ण है कृष्ण को आकर्षित करने के लिए। And also an important verse which says that the main focus of our process is to always remember Krishna and never forget him. और हम ये भी चर्चा करेंगे कि जो भी जिस भी हम जैसे हम लगे हुए हैं कृष्ण भावनामृत में, तो इसका सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य ये है कि कृष्ण को हमेशा याद करो और उन्हें कभी भी मत भूलो। So chapters 2 to 5 are about prerequisites for taking up bhakti. तो इसके अंदर बताया जा रहा है कि अध्याय नंबर 2 से लेकर अध्याय नंबर 5 में ये बताया गया है कि किस प्रकार जो जब हम भक्ति करने लगते हैं तो उससे पहले किस चीज की आवश्यकता होती है। The main topics of this chapter 2 is that sadhana bhakti is a practice to awaken dormant love for Krishna, bhav and prem bhakti. तो इसके अंदर बताया जा रहा है अध्याय नंबर 2 में सबसे महत्वपूर्ण है साधना भक्ति, जो बताया जाता है कि एक प्रकार का प्रयास है जो कृष्ण के लिए हमारा प्रेम है सुप्त अवस्था में उसको जगाने के लिए, मतलब भाव और प्रेम। Sadhana bhakti can be inspired by scripture and guru, it means Vaidhi sadhana bhakti, or by natural attraction, which means raganuga bhakti, which is also sadhana. तो इसके अंदर बताया जा रहा है कि जो साधना भक्ति है वो गुरु और शास्त्र से आ सकती है, इसका मतलब है वैधि साधना भक्ति, और स्वाभाविक रूप से जो जिसके प्रति आकर्षण आता है वो होती है रागानुगा भक्ति। One's eligibility for sadhana bhakti in general is having a taste or an attraction for Krishna. तो इसके अंदर बता रहे हैं कि क्या योग्यता है साधना भक्ति की कि हमारे अंदर कुछ स्वाद हो और आकर्षण हो कृष्ण के प्रति। The basic principle of sadhana bhakti is to always remember Krishna and never forget him. तो साधना भक्ति का जो सबसे पहला नियम ही है वो ये है कि कृष्ण को हमेशा याद करो और उन्हें कभी भी मत भूलो। Which is best accomplished by hearing and chanting about Krishna. जो कि सबसे ज्यादा आसानी से किया जाता है अगर हम श्रवण करें और जप करें। And a person can remember Krishna in any occupation or stage of life by offering one's activities to Krishna and molding one's life to help one remember him. इसके अंदर बता रहे कि कोई भी व्यक्ति जो है वो कृष्ण को याद कर सकता है, चाहे वो कोई भी कार्य कर रहा हो, किस प्रकार से अपनी जो भी गतिविधियां हैं उसे कृष्ण को अर्पित करके और अपने जीवन को इस प्रकार से मोड़ना है कि हम हर समय कृष्ण को याद कर पाए। This a summary of these 3 stages. We have sadhana practice, regulated, which is Vaidhi, and spontaneous, which is Raganuga.
तो इसके अंदर बताया जा रहा है कि साधना भक्ति दो स्तर में है कि किस प्रकार से हमें इस चीजों को करना चाहिए। पहली है साधना भक्ति, रेगुलेटेड जो लिखा है मतलब नियमों के द्वारा, वो होती है साधना भक्ति। फिर है स्पॉन्टेनियस जो स्वाभाविक ही रूप से आती है, उसको बोलते हैं रागानुगा भक्ति। And then the second stage is bhava, which is the dawn of perfection. तो भाव है जो कि पूर्णता की निशानी है। And prema is the third stage, which is complete perfection. और प्रेम है, जो प्रेम भक्ति है, वो पूर्ण तरीके से पूर्ण है। So the 6 characteristics that were summarized in this first paragraph. In sadhana bhakti, we get relief from all the stress, which is kleshagni, and we get all auspiciousness, which is subhada. तो इसके अंदर बताया जा रहा है कि साधना भक्ति से पहले जो 2 गुण आते हैं भक्ति के, वो पहला है कि कलेशाग्नि मतलब सारे दुखों का निवारण हो जाता है। दूसरा होता है शुभदा। And this applies both for Vaidhi sadhana bhakti and Raganuga sadhana bhakti. और साधना भक्ति में ये जो दोनों चीजें हैं, ये वैदिक साधना भक्ति में भी आते हैं और रागानुगा साधना भक्ति में। At the stage of bhava, then we add 2 more qualities, so we get 4 qualities: relief from distress, all auspiciousness, moksha lagatu takrit, deriding liberation, and sudurlabha, difficult to attain. तो इसके अंदर भाव में अब हम 2 चीजें तो हमने अभी चर्चा करी ही कि कैसे कलेशाग्नि और शुभदा है, और इसी के साथ साथ 2 चीजें और आ जाती हैं कि जो मोक्ष आनंद से भी उच्च है, मतलब जो हमें मोक्ष से प्रसन्नता मिलती है उससे भी ऊपर है शुद्ध भक्ति। और चौथा ये आती है कि ये सुदुर्लभा है। And at Prema Bhakti, we have 6. We add Sandrananda Visheshatma and Krishna Akarshani. तो इसके अंदर फिर प्रेम भक्ति में 2 चीजें और आती है, संदानंद विशेषात्मा और कृष्ण आकर्षणी। ये वही सब 6 गुण हैं भक्ति के जो हमने पिछले अध्याय में चर्चा करी। No, it's the same thing in a different picture. And now we're going to read some more. Okay. So an interesting point in that paragraph that we just read, it said, it was saying how that our devotional service is never lost. Well, whatever point we stop at, we will begin again in our next life. तो इसके अंदर बताया जा रहा है कि जो हमारी भक्ति है वो कभी भी रुकती नहीं है। हम जिस चीज पे आज रुकेंगे वहीं से हम अपने अगले जन्म में शुरुआत करेंगे। And the last sentence in that paragraph is that people have a natural taste for understanding books like Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam. Devotional service is easier than those who are accustomed to mental speculation or argument. तो अभी हमने जो आखिरी पैराग्राफ पढ़ा उसके जो आखिरी की 2 लाइनें हैं उस पे वो माता जी ने भी बताई है, चर्चा करी है। Okay. So now we can read some more. तो अभी हम आगे का पढ़ेंगे। कौन भक्त पढ़ना चाहेंगे? हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। क्या मैं रीड? Yes, please, Prabhu. श्रील प्रभुपाद जी की जय। इस कथन की पुष्टि के लिए प्राचीन काल के विद्वानों ने बहुत प्रमाण दिए हैं। उनके सामान्य मतानुसार कोई भी व्यक्ति अपने तर्कों तथा निर्णयों पर आधारित कतिपय दृढ़ विश्वासों द्वारा शासित हो सकता है। दूसरा व्यक्ति जो उससे भी बड़ा तर्कशास्त्री है, इन निष्कर्षों को काट कर दूसरा सिद्धांत स्थापित कर सकता है। इस तरह तर्क का मार्ग ना तो सुरक्षित है ना निर्णायक। इसलिए श्रीमद् भागवत की संस्तुति है कि मनुष्य को चाहिए कि वह आचार्यों के पद चिन्हों का अनुसरण करे। If you can read the one more next small paragraph also. श्रील रूप गोस्वामी ने अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति का सामान्य विवरण दिया है। इसके पूर्व भक्ति की 3 कोटियां बताई जा चुकी हैं।
साधन भक्ति, भाव भक्ति तथा प्रेम भक्ति। अब श्रील रूप गोस्वामी साधन भक्ति का वर्णन करना चाहते हैं। Thank you, Prabhuji. Okay, let's do another couple of slides. So this is a summary of what's coming up from chapter 3 to 14 and 15 and 16. So the first part, which is Vaidhi Sadhana Bhakti, is a service according to regulative principles. तो ये जो अभी जो हम पढ़ रहे हैं उन अध्यायों का जो निष्कर्ष निकल रहा है उसके बारे में बताया गया है। So when one follows regulative principles by the order of the spiritual master or on the strength of authoritative scriptures, there is no question of refusal, and that is called Vaidhi or regulated sadhana bhakti. तो इसके अंदर बोला जा रहा है कि पहला जो भाग है वो ये है कि सारे नियमों के अनुसार सेवा करना और सारे जो भी नियम बताए गए हैं उनका पालन करना, जो कि गुरु के माध्यम से आ रहे हैं और शास्त्रों से आ रहे हैं। और ऐसे ही बताया जा रहा है कि इन नियमों का उल्लंघन करने का तो कोई सवाल ही नहीं है, और इसी को वैधि साधना भक्ति बोला जाता है, जो कि नियमों से करती है। So that's covered in chapters 3 through 14. तो ये जो चीज है इसकी चर्चा हुई है अध्याय 3 से लेके अध्याय 14 में। And then chapters 15 and 16 cover Raganuga sadhana bhakti. और फिर अध्याय 15 और 16 में रागानुगा साधना भक्ति की चर्चा हुई है। And this means that we follow the regulative principles, and then we become more attached to Krishna, and we spontaneously offer more services. तो इसका मतलब ये है कि ये साधना भक्ति का दूसरा भाग है, कि इसका मतलब ये है कि हम सारे नियमों का पालन करें और कृष्ण से और ज्यादा आसक्त होके भक्ति को करें, और वो जो भी भक्ति हो वो स्वाभाविक प्रेम से हो। Okay. So the summary of the eligibility for sadhana bhakti: attraction to pleasing Krishna is the only requirement to begin to practice pure devotional service in sadhana bhakti. तो इसके अंदर बताया जा रहा है कि जो आकर्षण है हमारा कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए, यही पहली चीज है जिसकी जरूरत है साधना भक्ति करने के लिए। And the cause of this attraction is devotional service performed in previous lifetimes. और फिर इसका जो ये जो आकर्षण है इसका कारण ये है कि जो हमने पूर्व जन्म में भक्ति करी है। Now this seems like a bit of a cycle process. We will only perform devotional service if we had some devotional service in previous lifetime to make us attracted. So how did it start? And ultimately it starts by the mercy of a pure devotee. तो ये बता रहे हैं माता जी कि ये एक चक्र की तरह ही है कि हमें ये आकर्षण ही तभी पैदा होगा जब हमने पिछले जन्म में कुछ भक्ति करी होगी, और फिर इसके बाद फिर यही है कि ये आता किससे है इस जन्म में, किसी शुद्ध भक्त की कृपा से। Okay, now we should read some more. तो अब हम आगे का पढ़ेंगे, तो कौन भक्त पढ़ना चाहेंगे वॉलंटियरली? कोई पढ़ना चाहेंगे? चोपड़ा प्रभु जी हैंड रेज कर रहे हैं। प्रभु जी अनम्यूट करो। नहीं हो रहा उनका अनम्यूट नहीं हो पा रहा। ओके, कोई और? संतोष माता जी आपके पास बुक है? नहीं है। हरे कृष्ण माता जी, ये कौन से पैराग्राफ से पढ़ना है? बुक में है। हरे कृष्ण माता जी थर्ड
ये इस कथन की हाँ, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। 5th पैराग्राफ से पढ़ना माता जी, 5th पैराग्राफ से। एक मिनट। अपनी इंद्रियों, हरे कृष्णा, अपनी इंद्रियों से साधना हाँ, का अर्थ है अच्छा, अपनी। श्री प्रभुपाद की जय। साधन का अर्थ है अपनी इंद्रियों को किसी विशेष प्रकार के कार्य में लगाना। अतएव साधन भक्ति का अर्थ हुआ अपनी विभिन्न इंद्रियों को कृष्ण की सेवा में लगाना। इनमें से कुछ इंद्रियां तो ज्ञानार्जन के लिए होती हैं और कुछ सोचने, अनुभव करने तथा इच्छा करने के निष्कर्षों को संपादित करने के निमित्त होती है। अतः साधन का अर्थ मन तथा इंद्रियों को व्यवहारिक भक्ति में लगाना है। ये साधन किसी कुत्रिका को विकसित करने के लिए नहीं होता। उदाहरणार्थ, एक शिशु चलने का अभ्यास करता है, वह चलना अस्वाभाविक नहीं होता। शिशु में चलने की क्षमता मूलतः रहती है और केवल थोड़े से अभ्यास से वह अच्छी तरह से चलने लगता है। इसी तरह परमेश्वर की भक्ति प्रत्येक जीव की प्राकृतिक प्रवृत्ति है। यहाँ तक कि आदिवासी जैसे असभ्य लोग भी प्रकृति के नियम द्वारा प्रदर्शित किसी उद्भुत घटना को नमस्कार करते हैं और इसकी प्रशंसा करते हैं। हर अद्भुत दृश्य या घटना के पीछे कोई ना कोई परम शक्ति होती है। अतः ये चेतना भले ही बौद्धिकता ग्रस्त लोगों के में सुप्त में क्यों ना पड़ी रहे, किंतु हर जीव में पाई जाती है और जब यही शुद्ध हो जाती है तो कृष्ण भावना अमृत कहलाती है। हरे कृष्ण। okay, thank you. Okay, so there's a definition here at the beginning. Devotional service and practice means utilizing our different sensory organs in service of Krishna. तो इसके अंदर बताया जा रहा है कि जो भक्ति है उसका मतलब ये है जो हमारी इंद्रियां हैं उसको भगवान की सेवा में लगाना। Okay, and so practice means employing the mind and senses in practical devotional service. तो अभ्यास करने का मतलब ये है कि अपने मन और इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना। And Prabhupada gives a nice example. He says this practice is not for developing something artificial, that this potency for devotional service is already in us, like a child who learns to walk. Walking is natural for a child, but nevertheless he has to learn. तो इस it is too much to translate. Can you just repeat it in short? Okay, so Prabhupada is saying that this that devotional service that we want to learn is not artificial. तो प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि जो भक्ति हम सीखना चाह रहे हैं ये कोई नकली वस्तु नहीं है। Like when a small child starts to walk, this walking practice is natural for a child, but he needs to practice in order to walk nicely. तो इसके अंदर बताया, प्रभुपाद उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे जब एक छोटा बच्चा चलना चालू करता है तो वो तो चलेगा ही, लेकिन अगर वो उसका प्रयास करेगा चलने का अच्छे से तो वो ज्यादा अच्छे से चल पाएगा। Okay, we can read the next paragraph also. अभी ये किसने हटा दिया? Piyush. पढ़ूं माता जी मैं? हाँ जी प्रभु जी। ओए, ये किसने हटा दिया इसके ऊपर से? पीयूष प्रभु जी म्यूट करो, म्यूट। हरे कृष्णा प्रभुपाद जी की जय। अपनी इंद्रियों तथा मन को किसी कार्य में लगाने के लिए कुछ निर्धारित जिनसे प्रेम में कृष्ण के प्रति हमारी सुख चेतना उसी प्रकार जागृत हो उठती है जिस तरह एक शिशु से अभ्यास से चलने लगता है। जिसमें मूलभूत चलने की क्षमता नहीं होगी वह अभ्यास से चल नहीं सकता। इस प्रकार किसी प्रकार मात्र अभ्यास अर्थात साधन से कृष्णा भावनामृत को जागृत नहीं किया जा सकता। वस्तुतः ऐसा कोई साधन है ही नहीं। जब हम अपनी अंत क्षमता का विकास भक्ति के लिए करना चाहते हैं तो कुछ ऐसी विधियां हैं
जिन्हें स्वीकार करने और संपन्न करने से वह सुप्त क्षमता जागृत हो उठती है। ऐसा अभ्यास साधन भक्ति कहलाता है। Thank you, Prabhuji. So this is an important point. We cannot cause the bhakti by our sadhana, by our practice. इसके अंदर माता जी बता रही है कि ये महत्वपूर्ण विषय है कि ये जो भक्ति है हम इसको प्रयास करके मतलब अपनी जो साधना भक्ति है और नियमों का पालन करके उसकी प्रैक्टिस करके ही उसको प्राप्त कर सकते हैं। Nevertheless, there are certain processes which are prescribed, which when we accept them, will help our dormant capacity to come out and be invoked. तो इसके अंदर बताया जा रहा है कि कुछ ऐसी चीजें भी हैं, कुछ ऐसी गतिविधियां भी हैं जो हमारे सुप्त अवस्था में चीजें हैं उसको जगा देती हैं। Okay, so we should read this next paragraph because there's a nice analogy about psychiatrists, which is also very helpful. तो अभी अगला पैराग्राफ पढ़ना है। मानसी गंगा माता जी का हैंड रेज है। प्रत्येक जीव भौतिक शक्ति माया के वशीभूत होकर उन्मत्तता की असामान्य स्थिति में जकड़ा रहता है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, सामान्यतया बद्ध जीव उन्मत्त होता है क्योंकि वह सदैव ऐसे कार्य में लगा रहता है जो बंधन तथा दुख के कारण है। आत्मा अपने मूल रूप में सच्चिदानंद स्वरूप है। भौतिक कार्य में फंसने के कारण ही वह दुखी, नश्वर तथा अज्ञानी बन गया है। यह विकर्म के कारण है। विकर्म का अर्थ है ना किए जाने वाले कर्म। अतएव हमें साधन भक्ति का अभ्यास करना चाहिए, जिसका अर्थ यह होता है कि प्रातःकाल मंगल आरती, श्री विग्रह की पूजा की जाए, कतिपय भौतिक कार्यों से दूर रहा जाए, गुरु को नमस्कार किया जाए और उन अनेक विधि विधानों का पालन किया जाए जिनकी विवेचना क्रमशः वहां की जाएगी। इन साधनों से मनुष्यों की उन्मत्तता जाती रहेगी। जिस प्रकार मनोरोग चिकित्सक के आदेशों से मानसिक रोग चला जाता है, उसी प्रकार इस साधन भक्ति के बद्ध जीव को वह उन्मत्तता दूर हो जाती है जो माया के वशीभूत होने से उत्पन्न होते हैं। हरे कृष्णा। Thank you. Okay, so we'll catch up to where we are in the slideshow. So we're summarizing the important things about sadhana bhakti. Sadhana bhakti is a systematic practice executed with the mind and senses that reawakens the ecstatic love of Godhead lying dormant within the heart. तो इसके अंदर बताया जा रहा है कि ये जो साधना भक्ति है ये एक तरीके से करा हुआ प्रयास है जो कि हमारे मन और इंद्रियों से होता है, जो हमारे हृदय में सोए हुए प्रेम, जो कि भगवान के लिए सोया हुआ प्रेम है, उसको जागृत करता है। Sadhana does not exactly create love of Godhead, rather it revives the love of Godhead dormant in the heart. इसके अंदर बताया जा रहा है कि ये जो हमारी साधना है ये भगवान के लिए प्रेम प्रकट बनाता नहीं है, बल्कि ये तो उस प्रेम को जगाता है जो हृदय में सुप्त अवस्था में है। As a dormant seed will not grow without sunlight, the seed of love of Godhead cannot grow without receiving the Lord's mercy. तो इसके अंदर बताया जा रहा है कि जैसे कोई बीज है, वो अगर दबा हुआ है तो उसको जब तक सूरज की रोशनी नहीं मिलेगी वो उग नहीं सकता। उसी प्रकार से जो कृष्ण के प्रति हमारे प्रेम का बीज है वो बिना कृष्ण की कृपा के उग नहीं सकता। Sadhana is the systematic process for purifying the heart and attracting the Lord's mercy to descend and revives one's dormant love of God. तो इसके अंदर बताया जा रहा है कि जो साधना है ये एक पूरा तरीका है अब हमारे हृदय को शुद्ध करने का, कृष्ण की कृपा को आकर्षित करने का। किस लिए? ताकि हमारे हृदय में जो उनके लिए प्रेम है वो दोबारा से जाग पाए। Srila Prabhupada has given us two analogies explaining why sadhana does not
is not creating something new, but revives something intrinsic to the living entity. तो श्रील प्रभुपाद ने हमें 2 उपमाएं दी हैं ये बताने के लिए कि किस प्रकार से साधना भक्ति कुछ नया नहीं बनाती, पर ये कुछ ऐसा हमारे हृदय में जो प्रेम है उसको जगा देती है। The first one was the child learning to walk. पहला है कि जो बच्चा चलना सीख रहा होता है, And the second one was the patient recovering health. और दूसरा है कि एक जो मरीज है वो अपनी बीमारी से ठीक हो रहा है। So in the second one, Prabhupada said, a man's disease is cured by the directions of the psychiatrist. And so the psychiatrist is comparable to the spiritual master, whose directions will cure us of material disease. तो इसमें प्रभुपाद बता रहे हैं कि एक मनोचिकित्सक की बात हो रही है, जो कि जिसके अगर हम आदेश लेते हैं, जिसकी बात अगर हम मानते हैं, तो जो हमारी मनोस्थिति है, जो हमारी तबीयत है, वो ठीक हो जाती है। उसी प्रकार से प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो गुरु हैं वो भी एक मनोचिकित्सक के समान है, जिनके आदेशों का पालन करने से हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत हो जाता है। Okay, we read that. That's just the definition we read. Okay, that will come up in the next paragraph. Okay, so next paragraph we're up to. तो अब अगला पैराग्राफ पढ़ना है, कौन बात पढ़ना चाहिए? हरे कृष्णा, कैन आई रीड माता जी? Yes, Prabhuji. नारद मुनि ने श्रीमद् भागवत में इस साधन भक्ति का उल्लेख किया है। वे युधिष्ठिर महाराज से कहते हैं, हे राजन, मनुष्य को किसी न किसी साधन द्वारा अपने मन को कृष्ण पर स्थित करना होता है। यही कृष्ण भवनामृत कहलाता है। आचार्य अर्थात गुरु का कर्तव्य है कि वह अपने शिष्य के लिए ऐसे साधन ढूंढे जिससे शिष्य अपने मन को कृष्ण पर स्थिर कर सके। यही साधन भक्ति की शुरुआत है। And the next one. श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें इस प्रयोजन हेतु एक प्रामाणिक कार्यक्रम प्रदान किया है, जो हरे कृष्ण महामंत्र के कीर्तन पर केंद्रित है। इस कीर्तन में इतनी शक्ति होती है कि मनुष्य तुरंत कृष्ण से जा मिलता है। यही साधन भक्ति की शुरुआत है। मनुष्य को येन केन प्रकारेण अपना मन कृष्ण पर स्थिर करना है। परम संत अम्बरीश महाराज ने योग्य राजा होते हुए भी अपना मन कृष्ण पर स्थिर किया। इसी प्रकार जो कोई भी इस तरह से अपने मन को स्थिर करने का प्रयास करता है, वह अपनी मूल कृष्ण चेतना को सफलतापूर्वक जागृत करने में तेजी से प्रगति करेगा। हरे कृष्ण। Thank you, Prabhuji. So sadhana is the process of reviving our love of Godhead. The most important part of this process is to always remember the Lord and never forget Him. तो साधना भक्ति का सबसे जो हमारे कृष्ण में, जो हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम को जगा रही है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है कि हम हमेशा कृष्ण को याद करें और उन्हें कभी भी ना भूलें। And the quote is from Narad Muni talking to Yudhishthira. One has to fix his mind on Krishna by any means. तो इसके अंदर बताया जा रहा है कि नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज को बता रहे हैं कि हमें हमारा जो हृदय है वो किसी भी प्रकार से कृष्ण के ऊपर लगा के रखना है। And we talked about the spiritual master. It is the duty of the acharya or spiritual master to find the ways and means for a disciple to fix his mind on Krishna. तो इसके अंदर गुरु के बारे में भी बताया जा रहा है कि गुरु का कार्य है कि अपने शिष्य को किसी प्रकार से किसी ना किसी सेवा में लगाए रखे, ताकि जो उसका मन है वो कृष्ण के ऊपर ही केंद्रित है। Lord Chaitanya has given us the authorized program for this purpose, centered around chanting Hare Krishna. तो इसी चीज के लिए महाप्रभु ने हमें एक तरीका दिया है, एक गोला बना दिया है, जिसके आसपास ये है कि हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, जिसके आसपास ही ये सारी चीजें घूमती हैं। It has so much power that it immediately attracts one to Krishna. और इस हरे कृष्ण महामंत्र में इतनी शक्ति है कि ये तुरंत ही किसी व्यक्ति को कृष्ण से आकर्षित कर देता है।
Okay, this is a summary. When the inspiration for practicing devotional service comes from the scriptures and the orders of the spiritual master, one engages in Vaidhi sadhana, regulated practice. तो इसके अंदर बताया जा रहा है कि भक्ति करने के लिए जब किसी को गुरु या शास्त्र से ही प्रेरणा आती है तो वो वैदिक साधना भक्ति में लगता है. This is actually in the next paragraph. This is the wrong way around. Okay, let me put this up here. We'll stop at this one. This one, always remember Krishna and never forget him, and then we'll read the next paragraph. This verse, smartavya satatam Vishnu, vismartavyo na jatu chit, sarva vidhi nisyedo sur, etoyo eva kankaraha. Always remember Krishna and never forget him. All the rules and prohibitions mentioned in the Shastras are servants of these two principles. तो इसके अंदर ये श्लोक दिया गया है और उसके बाद बताया जा रहा है कि हमेशा कृष्ण को याद रखो और कभी भी उन्हें मत भूलो, और जितने भी नियम हैं और रोक टोक है शास्त्र में जो बताए गए हैं वो सारे इस नियम के दास हैं. Okay, so now we should read some more. तो अभी हम आगे रीड करेंगे. तो कौन भक्त करना चाहेंगे? मीतू सिंगला माता जी, आप करोगे क्या रीड? पॉसिबल है आपके लिए? मीतू सिंगला माता जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ, मैं आपको बताऊं कहाँ से रीड करना, कर पाओगे क्या? हाँ जी माता जी, प्लीज बताएं. एक मिनट. चैप्टर नंबर 2, पेज नंबर 21, लास्ट पैराग्राफ. अब इस साधन भक्ति के भी 2 भाग किए जा सकते हैं. इट स्टार्ट फ्रॉम हियर. पेज नंबर 21. पेज नंबर 21. हाँ जी, चैप्टर नंबर 2. मिल गया माता जी? माता जी स्टार्ट कहाँ से करना है, एक बार प्लीज बताएं. लास्ट पैराग्राफ है ना पेज नंबर 21 का. अब इस साधन भक्ति के भी 2 भाग किए जा सकते हैं. हाँ जी हरे हाँ कृष्ण. जी, यहाँ से पढ़ना माता जी. यहाँ से रीड करना है माता जी. हाँ जी, इस पैराग्राफ से. हरे कृष्ण. अब इस साधन भक्ति के भी 2 भाग किए जा सकते हैं. पहला भाग विधि विधानों के अनुसार भक्ति है. इसमें अपने गुरु के आदेश से या प्रामाणिक शास्त्रों के अनुसार विभिन्न विधि विधानों का पालन करना होता है और इससे इनकार होने का प्रश्न ही नहीं उठता. ये वैदिक भक्ति कहलाती है. इसके बिना तर्क के करना पड़ता है. साधन भक्ति का दूसरा भाग रागा अनुरागा भक्ति है. रागा अनुरागा भक्ति उस स्थिति को सूचित करती है जिस पर विधि विधानों का पालन करते हुए मनुष्य कृष्ण के प्रति कुछ अधिक अनुरक्त हो जाता है और प्राकृतिक सहज प्रेम के कारण भक्ति करता है. उदाहरण के लिए भक्ति में रत मनुष्य को प्रातः काल उठकर आरती करने का आदेश दिया जा सकता है. प्रारंभ में अपने गुरु के आदेश से शिष्य तड़के जल्दी उठता है और आरती करता है, किंतु फिर उसमें वास्तविक अनुराग उत्पन्न हो जाता है. जब उसमें यह अनुराग उत्पन्न हो जाता है तो वह स्वतः अर्चा विग्रह को सजाता है, उसके लिए तरह तरह के वस्त्र तैयार करता है और भक्ति को उत्तम रीति से करने के लिए नई नई योजनाएं बनाता है. यद्यपि यह भक्ति साधन भक्ति के अंतर्गत आती है, किंतु यह प्रेममयी सेवा की भेंट स्वतः स्वरूप होती है. इस तरह साधन भक्ति 2 भागों में विभक्त की जा सकती है, वैधि तथा राग अनुराग. Thank you. And you could read the next small paragraph as well, which has got a definition. रूप गोस्वामी ने भक्ति के प्रथम भाग अर्थात वैदिक भक्ति की परिभाषा इस प्रकार दी है. जब भगवान के प्रति
कोई अनुरक्ति या कोई राग अनुराग भक्ति नहीं होती और मनुष्य गुरु के आदेश पालन मात्र के लिए या शास्त्रों का पालन करने के लिए भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो ऐसी अनैच्छिक सेवा वैधि भक्ति कहलाती है। Thank you. हरे कृष्ण। So this distinguishing the two types of sadhana bhakti. When inspiration comes from practicing devotional service from the scriptures and the orders of the spiritual master, one is engaged in vaidhi sadhana, regulative practice. तो इसके अंदर इसी चीज की चर्चा करी जा रही है कि जब शास्त्रों से और गुरु के आदेशों से भक्ति करी जाती है तो उसको वैधि साधना भक्ति कहा जाता है। And when the inspiration comes for practicing devotional service comes from a natural attraction to pleasing Krishna, it is called raganuga sadhana, spontaneous practice. तो उसके बाद फिर जब प्रेरणा आती है व्यक्ति के हृदय से ही कि मेरे को कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए करना है, जो भी करना है, तो उसे रागानुगा साधना भक्ति बोला जाता है। Okay, that one we did. Oh, that's the next. Okay, so always remember Krishna and never forget him. We're coming back to. Okay. Time 10 to 8. We should read a little bit more. ओके, तो अभी आगे का रीड करना है। कौन भक्त करना चाहेंगे? अंशु माता जी आप करो, अगर आपके वहाँ नेटवर्क ठीक आ रहा है, आप एक बार रीड करके देखो। Unless you would rather leave that for next time. As you say, माता जी। There's not many notes left, but there's quite a bit of reading. हरे We can't really finish it this time. Okay, so should we keep it on hold then? Yeah, I think so, because it's kind of changing the subject. I think we better start this next time. तो अभी जहां तक हमने छोड़ा है, कृपया करके सब भक्त अपनी पुस्तक में उस पे निशान लगा ले। अगली बार हम उसके आगे से चर्चा करेंगे। Anyone have any questions? तो किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। आज की क्लास बहुत अच्छी थी माता जी। मेरा एक प्रश्न है कि जैसे वैदिक साधना भक्ति में कहते हैं कि गुरु के बताए हुए निर्देश पे चलना चाहिए, तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई ना कि गुरु के निर्देशों का पालन कर रहे हैं, और रागानुगा में कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं, वो कैसे ज्यादा अच्छा हुआ? और एक प्रश्न और था माता जी, मैं पूछता हूँ। Okay, can I have an exact translation? I got Yes. most of it, but not quite all of it. The question is that we say in Vaidhi Sadhana Bhakti, we have to follow the instructions of spiritual master. So that is Sadhana Bhakti. So he's saying that it's good that we are following the instructions of our spiritual master. But in Raganuga Bhakti, we are directly trying to please Krishna. We are doing whatever we are doing, we are trying to do it to please Krishna. So how is it better than Vaidhi Sadhana Bhakti? Well, we're still actually reliant on our spiritual master, because we're in the stage of sadhana bhakti, we don't actually have direct connection with Krishna. So the only way we know that Krishna will be pleased is if our spiritual master will let us know. So we're not without our spiritual master in Raganuga Bhakti. तो माता जी बता रहे कि रागानुगा भक्ति में भी हम अपने गुरु के बिना नहीं है। हम अगर कृष्ण को प्रसन्न करने की इच्छा रखते भी हैं
तो वो गुरु के माध्यम से ही है, हम स्वयं से नहीं कर सकते, और ये ऐसे एक भक्त को पता होता है, और और वो गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करता है। And we're doing most of the same things. We're still doing our chanting. We're still rising early in the morning. What has changed is our motivation. तो इसके अंदर माता जी बता रहे हैं कि जो रागानुगा साधना भक्ति होती है, उसके अंदर हम कार्य तो वही कर रहे होते हैं जो हम वैदिक साधना भक्ति में करते हैं, जैसे सुबह उठना, भगवान की आरती करना, जप करना, लेकिन जो चीज बदलती है वो बदलती है हमारा उसके प्रति भाव और हमारा आकर्षण, बस। So in the beginning, there are some parts of our sadhana bhakti that we weren't naturally attracted to. I mean, in the beginning, I was told to chant Hare Krishna Mahamantra. I didn't really know why. I followed the instruction out of obedience. तो माता जी कह रही है कि वैदिक साधना भक्ति में हम नियमों का पालन करते हैं, जैसे कि हमें बहुत बार पता नहीं होता क्यों करते हैं, लेकिन जैसे माता जी अपना उदाहरण दे रही है कि मुझे शुरू में बोला गया कि तुम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे ऐसा क्यों बोला जा रहा है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी गुरु की बात मानने के लिए ऐसा किया। So, but we have to put some effort into try and develop that attraction. We have to have at least theoretical understanding that we want to please Krishna. तो हमें वो आकर्षण है जो कृष्ण के प्रति, उसको विकसित करने के लिए कुछ प्रयास तो करने ही पड़ेंगे, और हमें समझना पड़ेगा कि उसको विकसित करने के लिए हमें किस प्रयास की जरूरत है। And then once we come to this stage of actually wanting to do it because we want to please Krishna, then that becomes Raganuga. So it's not a sudden change, it's a gradual change. Gradually in different parts of our devotional service, we become more attracted to doing things to please Krishna, to please the deities, to please the holy name. तो फिर जब हम साधना भक्ति के नियमों का पालन करते हैं तो धीरे धीरे हमारा आकर्षण बढ़ता है, हमें चीजें पता लगती हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, और ऐसा नहीं कि आप एक ही दिन में वैदिक भक्ति से रागानुगा भक्ति पे चले जाओगे, ये एक प्रोसेस है, तो इसमें समय लगता है। धीरे धीरे क्या होता है, आपको पता लगता है कि मुझे हरि नाम को संतुष्ट करना है, कृष्ण को संतुष्ट करना है, मैं जो भी कार्य कर रहा हूँ वो कृष्ण की प्रसन्नता के लिए है। So this Raganuga Bhakti will come in after we reach the stage of Nishta, and then we become ruchi, we become attracted to Krishna. That will make us attracted to trying to please him. तो अब धीरे धीरे क्या होगा कि रागानुगा भक्ति का मतलब ये है कि हम निष्ठा से आगे बढ़ रहे हैं, और धीरे धीरे जो हमारा आकर्षण है वो कृष्ण के प्रति बढ़ेगा। Yeah, so after Nishta comes ruchi and then Akasha, right? Akasha. और फिर निष्ठा के बाद ही आता है रुचि, और रुचि के बाद आता है आकर्षण। So it's actually quite a high level. So we shouldn't take it lightly that it's something not important. Once we get to that stage, we start to get some awareness of our relationship with Krishna and with Krishna's devotees. तो हम इस चीज को बहुत साधारण तरीके से नहीं लेना चाहिए, और हम जब उस स्तर पे आ जाएंगे तो हम कृष्ण को और उनके भक्तों को समझ पाएंगे। And because that happens before we get to Bhava Bhakti, we actually get some awareness. Where were we? तो फिर ये तभी आता है जब हम साधना भक्ति के स्तर पर आते हैं, हमें कुछ ज्ञान होने लगता है धीरे धीरे। Just find this chart. I think. हरे कृष्णा माता जी। Hare Krishna. Yeah, so माता जी एक प्रश्न था। अभी आपने बताया था कि कृष्ण किसी भी चीज से आकर्षित नहीं होते, भक्ति से भी नहीं। कृष्ण खुद आकर्षित मतलब आकर्षण के वो देवता है, वो सिर्फ आकर्षित राधा माता ही कर सकती है, राधा जी कर सकती हैं, वो सिर्फ राधा से ही हो सकते हैं। इसीलिए वृंदावन में सारे गोस्वामी राधा के चरणों में बैठे हुए उनकी वंदना करते हैं। इसका क्या तात्पर्य है?
So, Mataji, the question is that Krishna, you just told that Krishna cannot be attracted. He can't be attracted through any of our efforts, but because he's all attractive. So, how is it possible that why all the Goswamis in Vrindavan are sitting in the lotus feet of Srimati Radharani, and why it is said that he can only be attracted by Srimati Radharani? So Radharani is the first energy expansion of Krishna, and actually we are all expansions ultimately of her, but we're separated expansions. So the special thing about Radharani is that she is totally humble, and when she sees someone interested in Krishna, she will present them before Krishna and say, look, here's a devotee who's trying to please you. So she will help try and get us Krishna's mercy. इसके अंदर बताया जा रहा है कि श्रीमती राधा रानी जो है वो कृष्ण का पहला विस्तार है, और उसके निष्कर्ष के रूप में हम सब भी श्रीमती राधा रानी का विस्तार है। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो है वो ये है कि राधा रानी बहुत ज्यादा विनम्र है, और क्योंकि वो विनम्र है तो कोई भी भक्त उनकी शरण में आता है तो वो उसे कृष्ण के पास ले जाती है कि देखो ये भक्त आया है, ये तुम्हारी शरण लेना चाहता है, इसे अपनी शरण में ले। So Radharani is the one who wants more than anyone else to please Krishna, and she will do that by introducing other devotees to Krishna as well. तो राधा रानी जो है वही सबसे ज्यादा कृष्ण को प्रसन्न करना चाहती हैं, और इस कार्य के लिए वो और भक्तों को भी कृष्ण से जोड़ती हैं जो कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं। Because she cares only what will please Krishna. क्योंकि वो उन्हीं लोगों को रखती हैं अपने पास जो कृष्ण को प्रसन्न करना चाहते हैं। And we can't take shelter directly of Radharani. We have to go through Guru. तो और हम राधा रानी का भी जो आश्रय है वो सीधे प्रकार नहीं ले सकते, हमें गुरु के माध्यम से ही वहां जाना पड़ेगा। And ultimately, once we get to the level of which level? Ruchi. After Ruchi, we get to Asakti. So around the level of Asakti, we'll get to know our eternal form, but we will still be acting through the parampara. तो रुचि के बाद आसक्ति का स्तर आता है, और जब हम उस स्तर पे पहुंच जाएंगे तो हमें अपने स्वरूप का भी ज्ञान हो जाएगा, लेकिन वो तभी होगा जब हम अपने परंपरा के माध्यम से जाएंगे। So there's an example that I'll tell you in this regard. There was now where's my story? Narottam. Where's my story? Oh, I think it's here. Just 1 minute, I'll find my story. Sorry, I'm getting tired. I'm forgetting everything just now. That's okay. You can tell that later. Yeah, we can tell that later. But there's a story about how when we get to the spiritual life, the spiritual world, we'll be still serving our seniors. We won't be running up to Radharani and say, here, Radharani, I've made this for you. It We'll be maybe going- was about that nosepin that was lost. Yeah, I've saved that story somewhere. I can't remember where I put it. Okay, you can tell it in next class. Yeah, I think so. It's getting late. And now, so I'm not sure about next week, because next week I've got a double class on Friday morning and I've got to go out on Saturday morning. So I'm not 100% sure. We may just have to miss 1 week. That's okay. I'll ask you this time on Friday only. I'll put a Yeah. message if you're able. Yeah, you asked me at that time, but I think I might be too tired. I don't, we'll see. So we But skip. it'll just be the 1 week, because then after Saturday my teaching is finished, and so it'll just be next week. I think we should skip. Okay, we can skip it then. We will have class after 1 week. Yeah, we'll come back the following week, and then I'll be free. Hopefully, we might have a carpenter, but he should be gone by this time of the night.
Okay. All right, thank you very much. Is any other questions? अभी माता जी कह रहे हैं कि हम इस बारे में अगली कक्षा में चर्चा करेंगे और अगले हफ्ते कक्षा नहीं रहेगी और उसके अगले हफ्ते कक्षा होगी। अभी माता जी वैसे भी थक चुके हैं क्योंकि उनकी सुबह से क्लासेस थी। किसी को कोई प्रश्न करना है तो कर सकते हैं, नहीं तो कुछ बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है तो कृपया करके अगली कक्षा में प्रश्न कर लीजिए, माता जी रेस्ट कर लें ताकि। Okay. ओके Okay, माता जी। looks like we finished. Okay, thank you. Vancha kalpatarubhyascha, kripa sindhubhya eva cha. Paritanam pavanebhyo vaishnavebhyo namo Thank namo. you for your Nanda time. Kodi Vaishnavi. Thank you, Hare Krishna. I like this. This is very nice going through nectar devotion. Thank you. Hare Hare Krishna. Krishna. Hare Hare Krishna. Krishna.